Good morning, students. Myself Rajiv Verma is going to continue chapter number 4 of 11th class, and our today's topics are zero vector, properties of zero vector, multiplication of a vector by a real number, multiplication of a vector by scalar, and composition of vectors. We are taking one by one. First of all, the first topic is zero vector. Before this we have studied about unit vector, means the vector which is have the unit magnitude is known as the unit vector. Here zero vector is also termed as the null vector, means the vector which is having the zero magnitude and any arbitrary direction is known as a zero vector. यानी any vector which is having zero magnitude and any arbitrary direction, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं. किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो सेकंड नेम है हम इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर. ठीक है. और इसमें क्या है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. कहने का मतलब है हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड with any direction. Zero magnitude with any direction known as the null vector or zero vector. अब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब why we have introduced the zero vector, जीरो वेक्टर की जरूरत हमें क्या पड़ी? तो to know the use of the zero vector we are going to study its properties. यानी our second topic is properties of zero vector. properties of zero vector. सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर में फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इफ वी एड एनी वेक्टर with zero vector then we got the same vector. यानी अगर हम किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कर दे तो आंसर जो होगा उस पे नो चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वेक्टर ए, ये कोई भी एक वेक्टर हमने ले लिया एंड वी आर एडिंग दिस वेक्टर ए विद जीरो वेक्टर, then answer becomes vector a only. यानी जो वेक्टर हमें दिया गया था that vector we got again. this is first property. second point पे आते हैं. second point है if we multiply the null vector with a real number, यानी हम किसी भी रियल नंबर में अगर हम जीरो वेक्टर की मल्टीप्लाई करें then we got the zero vector. तो जीरो वेक्टर ही हमको मिलेगा. यानी रियल नंबर हमने मान लिया कि सपोज लैम्डा इज एनी रियल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय द नल वेक्टर देन वी गॉट नल वेक्टर. यानी किसी भी रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? all numbers means like even numbers, all integers, natural numbers, prime number, co-prime numbers, and rational numbers, irrational numbers, these all are real numbers. यानी 10th क्लास तक जो भी नंबर्स आप पढ़ते हो वो सभी रियल नंबर्स हैं. 11th में आते हैं इमेजिनरी नंबर. तो now the real number is multiplied by the zero vector, then we got the zero vector. This is the second property. Third point, if we multiply zero with any vector then we got null vector. Now we are moving for the fourth point here. The fourth point is if we
multiply 0 with any vector, then we got null vector. null vector और जीरो वेक्टर, जैसे हमने जीरो से किसमें मल्टीप्लाई कर दी, वेक्टर ए, then we got the null vector. What is the difference between the zero and the null vector? Null vector is having both magnitude as well as direction, and zero is a number. Okay, so while we are multiplying a vector, a कोई भी vector है with zero, then the answer may be zero, but it will be a vector. The direction of zero must be the direction of a. So that is why we get the null vector. Okay, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. ये हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट होगी. नाउ मूविंग टुवर्ड द 5th पॉइंट. 5th पॉइंट क्या हो सकता है? इफ वी हैव लैम्डा एंड म्यू, ये क्या है? एनी रियल नंबर्स, and also lambda is not equal to mu, ये lambda mu के इक्वल भी नहीं, and again lambda is not equal to 0 and mu is not equal to 0. तो दोबारा से समझ लीजिए क्या कंसीडर कर रहा हूं, दो रियल नंबर जिनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, और ये दोनों जीरो भी नहीं है. तो इन दिस केस if we write a relation that lambda a is equal to mu b, then this relation may be true only when a and b are null vectors. जब a और b null vector हो तभी ये इक्वेशन को हम ट्रू कह सकते हैं, क्योंकि ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो ये दोनों अलग होने चाहिए. लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाने का मतलब है इक्वेशन ट्रू कब होगी, जब ए और बी कैसे हो, ये दोनों नल वेक्टर हो. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर कंप्लीट कर ली है, एंड वी हैव कवर्ड अवर 2 टॉपिक्स, जीरो वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द जीरो वेक्टर. अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम फॉर जीरो वेक्टर, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है. दिस इज XY प्लेन, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. जो यहाँ पर OP है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन वेक्टर. ठीक है, अगर मैं पोजीशन वेक्टर को कह दूं कि दिस इज एट द ओरिजिन, अगर पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे लाई करता हो, देन इट विल बिकम अ नल वेक्टर, तब ये एक नल वेक्टर का एग्जांपल होगा. तो अगर हम एग्जांपल देना चाहें कि एग्जांपल बताओ नल वेक्टर के क्या क्या हो सकते हैं, तो वी कैन से दैट एनी वेक्टर, द पोजीशन, एनी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल व्हाइल द पार्टिकल इज एट ओरिजिन. जब पार्टिकल ओरिजिन पे हो तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, वो नल वेक्टर होगा. इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो एक्सेलरेशन का भी केस ले सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा ये एक नल वेक्टर होगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. इफ इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देन ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, देन इट विल बी जीरो और इट विल रिप्रेजेंट अ नल वेक्टर. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो acceleration vector of a particle or any object which is moving with uniform velocity is known as a null vector. या हम कह सकते हैं position vector of any particle which is existing at the origin is also an example of the null vector. Okay.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड आते हैं। थर्ड है पॉइंट नंबर थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, यानी किसी भी वेक्टर का रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन। तो हमने मान लिया कि सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर ए, और क्या मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज वेक्टर ए and this much is the magnitude and this is the direction, arrow is indicating the direction of vector a। अब अगर मैं इसको, हमने माना लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर है, अगर हम इसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा ए, इट विल बी वेक्टर बी सपोज। तो जो वेक्टर बी होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, देखो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज यहीं पे लेते हैं, सपोज लैम्डा इज इक्वल टू 2। अगर 2 क्या है, एक रियल नंबर है, अगर लैम्डा 2 तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जितना ये था उसका डबल। ठीक है, ये हो गया डबल, ये 2a हो गया, 2a के इक्वल हो गया, यानी जो वेक्टर बी है वो 2a, एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट कंसीडर करूं, अगर मैं ये मान लूं कि सपोज जो लैम्डा है वो अगर -2 है, लैम्डा अगर -2 है तो अगेन मैग्नीट्यूड बिकम्स डबल, बट डायरेक्शन विल चेंज। तो वेक्टर बी जो नया वेक्टर बना मल्टीप्लाई करने पर, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2a, यानी इस नेगेटिव साइन से क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को चेंज कर दिया। तो क्या कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूजन ये है कि व्हाइल वी आर मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर विद अ रियल नंबर, देन the magnitude of the vector becomes real number times the magnitude of the given vector and keeping the direction same। okay, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नॉट अ रियल नंबर। इस बार हम लेते हैं बाय स्केलर। अब अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर, तो ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू 2, 3 √2 कुछ भी 0.5 हो सकती है। लेकिन अगर मैं स्केलर की बात करता हूं तो दिस मस्ट हैव एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, विद यूनिट। यहां पर नो यूनिट। रियल नंबर तो एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती है, लेकिन स्केलर क्या है, स्केलर में मैग्नीट्यूड भी है और कोई यूनिट भी है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं मास। मास स्केलर है, मैंने लिख दिया 10 किलोग्राम, तो 10 इसका मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम इसकी यूनिट है, लेकिन नंबर में नहीं लिख सकता मैं कुछ भी यूनिट, बिकॉज रियल नंबर्स आर नॉट हैविंग यूनिट, नंबर्स आर नॉट हैविंग, दीज आर डायमेंशनल क्वांटिटीज। तो ये तो डिफरेंस हुआ कि जब हमने पहले वाले टॉपिक किया कि रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करें वेक्टर की, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड स्केलर। तो ये कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, चलिएगा आगे क्या है भाई, कि जैसे मैं लिखूं, अगर मैं लिख देता हूं सपोज एक छोटा सा फार्मूला f = ma,
ए क्या है वेक्टर, m क्या है स्केलर, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, तो वी गेट अनदर वेक्टर विच इज फोर्स एंड इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर मैं किसी स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करूं, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं वेक्टर से, तो क्या आएगा, स्केलर क्या है मतलब विद यूनिट, तो विल गेट अ वेक्टर, तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एफ क्या है यहां पर, जैसे ये एफ ही तो है फाइनल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एफ यानी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एफ इज द डायरेक्शन ऑफ ए, इसकी डायरेक्शन ही एफ की डायरेक्शन होगी। तो इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद अ स्केलर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसके और भी एक आधा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं इसे समझने के लिए। क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मोमेंटम का एग्जांपल है p इक्वल टू m इंटू बी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर हुआ, m क्या हुआ एक स्केलर हुआ, और p क्या हुआ एक वेक्टर हुआ जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर है। इसकी डायरेक्शन किसके बराबर है, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर के। ओके, तो वी हैव कवर्ड अप टू दिस टॉपिक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट ओनली, दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। Composition of vectors. Composition of vector may be divided into three categories as triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition। यानी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वी कैन से व्हाइल वी आर गोइंग टू ऐड टू और मोर वेक्टर्स, वी आर गोइंग टू, तो वी आर हैविंग दीज मेथड्स कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसे ऐड करने का ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन वे है बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड द पैरेललोग्राम लॉ इज आल्सो the way to find out the resultant of any two vectors by the, this is a different way for the addition। और polygon law, polygon means more than two vectors we can add with the polygon law of vector addition। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, वेक्टर a and vector b, and we are going to add these two vectors by this law। तो क्या करेंगे, we should take first of all vector a and then join vector b, and the method will be head of a is joined with the tail of b, yani head to tail method। We are going to join these two vectors by head to tail method, and this is suppose o, this is p, this point is q, then oq will represent the resultant of these two vectors। यानी मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल QOP vector OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector। ओके, अब इसको हमने क्या मान लिया, रिजल्टेंट को हमने मान लिया कि R वेक्टर है। अगर ये R वेक्टर मान लिया तो R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। This will give the resultant of these two vector, यानी इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर जो थर्ड साइड होगी, यानी इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन को, if two vectors are added in such a way that these two vectors are existing
in two sides of a triangle, then third side of the triangle will give the resultant of these two vectors. यानी अगर दो वेक्टर को इस तरह से ऐड किया जाए कि उसकी दो साइड्स किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो, तो उसकी जो थर्ड साइड है that must give the resultant of these two vectors. अब इसमें अगर हम ये करें कि we are taking suppose the vector b first, हम पहले b को अगर ले लेते हैं तो we can also add this. ये पहले हमने b वेक्टर को ले लिया, उसके बाद a वेक्टर को ऐड कर दिया. क्या ध्यान रखना है? कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन सेम. इस बार ये हो गया रिजल्टेंट, ये o, इसका नाम p, ये q मान लीजिए, ये r मान लीजिएगा. Here OQ is equal to OP plus PQ, and moreover we can write R vector is equal to OP क्या है? Vector B plus vector A. ठीक है. तो in this way we have calculated the two things. Resultant को हमने कैलकुलेट करा A plus B vector, और रिजल्टेंट को हमने b plus a वेक्टर भी कैलकुलेट किया. In this way we can write a plus b is equal to vector b plus v plus a. Okay. So vector addition is also commutative. This is the commutative property of mathematics. So vector addition is commutative, मतलब we can add two vectors by any ways. मतलब पहले हम वेक्टर ए को लें, फिर बी को लें, या बी को पहले लें और ए को बाद में लें, तो वी आर फ्री टू ऐड both the vectors by the triangular law, and commutative property exists in the triangular law of vector addition.